ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवद गीता चैप्टर 1 का श्लोक संख्या 16 और 18 पढ़ रहे हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सदेवश्च सुगमर्माणि पुष्पको काश्यस्य परमवेशवासा शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिच्च न पराजिता द्रुपद द्रुपदयश्चु सर्वश पृथ्वीवृते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादा मुनिमृ प्रथा व कपरऊह। What meaning translation purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। Ananta Vidyam, the conch named Ananta Vidya, Raja the king, Kunti Putra, the son of Kunti, Yudhishthira, Yudhishthir, Nakula, Nakul, Sahadeva, Sahadev, Cha and Sughosa, Manipushtak, the conch named Sughosh and Manipushpak, Kasya, the king of Kasi, Varanasi, Cha and Param Ishudas, the great archer. Shikhandi, Cha also Maharatha, one who can fight alone against thousands. Drishtadyuman, the son of King Draupad. Virat, the prince who gave shelter to the Pandavas while they were in disgrace. Cha also Satyaki, the same as Yuyudhana, the charioteer of Lord Krishna. Cha and Aparajita, who had never been vanquished. Drupada, king of Panchal. Draupadi, the son of Draupadi. Sorry. Cha also. Sarvesha also. Prithvi Pate, O king. Saubhadra, Abhimanyu, the son of Subhadra. Cha also. Mahabahu, mighty in armed. Sankhan, conch shell. Dadamu, Bleo. Prathak, each separate translation. King Yudhishthira, the son of Kunti, blave his conch shell, the Anant Vijay, the Nakula and Savdev blave the Sughosha and Mani Pushpak. That great Akar, the king of Kashi, the great fighter, Shikhandi, Drishtadyuman, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, and son of Draupadi, the other, O kings such as the mighty armed son of Subhadra, all blave their respective conch shell. Purport. Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the son of Pandu and endeavoring to enthrone his own son on the seat of the kingdom was not very laudable. The sign already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in that great battle, beginning with the Grandazar Bhishma down to the grandson like Abhimanyu and others, including kings from many states of the world. All were present there and all were doomed. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his son. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने के नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि इस वाले जो वर्ष है ये वर्ष में दो वर्ष साथ में आ गए हैं, 16, 17, 18 से 3 वर्ष साथ में आ गए हैं। तो इसको कंक्लूजन में जाने का प्रयास करें। इसमें जैसे युधिष्ठिर महाराज, नकुल है, सहदेव है, सात्यकी है, धृष्टद्युम्न है, युयुधन है ना, और भी जितने भी महारथी है वो सबने अपना अपना जो है शंख बजाया, तो उनके बारे में बताया गया। तो इसमें जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि केवल आपके चाल के कारण कि आप अपने बेटे को गद्दी पर बिठाना चाहते हो, आपकी गलती के कारण ये पूरे कौरव सेना का नाश हो जाएगा, क्योंकि आप ही सिर्फ चाह रहे हो, क्योंकि उनको पता है मेरा बच्चा गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत पक्ष का साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो वन हु गिव the promise to dharma, then he will never get defeated. ऐसा व्यक्ति जो धर्म के रास्ते पर रहेगा वो कभी डिफीट नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर है, रिलीजन के रास्ते पर रहेगा, he will definitely get defeated। तो हम देखते हैं कि सबसे भगवान कृष्ण के जो सारथी है वो सात्योकी बहुत बड़े धनुर्धर है ना। तो इस अध्याय में देखते हैं जैसे युधिष्ठिर महाराज है वो उनको नैतिक चीजें हैं, मतलब वो धर्म के अनुसार चीजें कर पाते हैं। हम धृष्टद्युम्न को देखते हैं, धृष्टद्युम्न जो है वो पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र है, लेकिन उनको द्रुपद महाराज ने क्यों अग्नि से प्राप्त किया? वो उनको
उनका जो वो चाह रहे हैं कि मेरा जो पुत्र है द्रुपद, ये धृष्टद्युम्न जो है ये मारे द्रोणाचार्य को जाके, तो ये उनका एक्चुअली इंटेंशन है इस चीज के अंदर। तो ये सब चीजें क्या एक्चुअली कलयुग में चीज चलती रहती है, इसमें हम एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये चीजें है क्यों, क्योंकि कलयुग का ये नेचर दिखाता है हमें। द्वापर के बाद जितनी भी एक्टिविटी हुई है ना, तो हमें सिखाया है इन्होंने कि देखो कलयुग में क्या क्या चीजें होगी, कैसी कैसी एक्टिविटी होगी, तो हम कैसे अपने आप को उन चीजों से बचा के रख सकते हैं। मतलब जितना प्रयास है उतना तक कर सकते हैं, माना कि कलयुग में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट वी शुड गिव आवर गुड एफर्ट्स सो दैट वी कैन नॉट गेट रिग्रेट एट द एंड ऑफ आवर लाइफ। ये चीज उस टाइम नहीं होनी चाहिए। अंत समय में केवल नारायण स्मृति के अलावा कुछ और ना हो जाए, किसी और चीज की स्मृति ना हो जाए, तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ अगर हमारी बैलेंस होगी, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ भक्ति करो, हम ये कहते हैं आप जो कर रहे हो करो, साथ में भक्ति का एक पोर्शन जोड़ दो। मतलब भक्ति में हमारा ये होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर क्या है कि हम जो कर रहे हैं करेंगे, एक साथ में हमें क्या करना है कि भक्ति का जो एक अलग स्लॉट हमें निकालना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल, कुछ नहीं। शुरुआत आप माला से कर सकते हो, इस तरीके की चीजें करेंगे तो देयर विल बी नॉट एट ऑल एनी इशू। नहीं तो फिर आजकल चीजें है दिक्कत। एक बार प्रभु जी बता रहे थे अगर मंगला आरती नहीं करते तो घर में दंगल होता है। तो क्यों होता है एक्चुअली, ये भगवान को सेंटर में नहीं रखा हमने, है ना। अगर भगवान अगर सेंटर में होंगे तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सबका मोटो इंटेंशन भगवान की सेवा होगा, तो जो भी विचार देंगे सब भगवान से रिलेटेड देंगे। लेकिन अगर भगवान सेंटर में नहीं हुए, हर व्यक्ति हर जीवात्मा अपना अपना अलग अलग व्यू पॉइंट देगा, अपना अपना व्यू पॉइंट देने का अनुसार क्या होगा, फिर तो दिक्कत आएगी फिर, है ना। फिर वो अगला व्यक्ति बोलेगा कि नहीं ये करना चाहिए, वो बोलेगा ये करना, तो बस यही चलता रहेगा, फिर फालतू में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो चीजें अगर सेंटर में भगवान को रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो कर रहे हैं करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चीज अपने भगवान छुड़वा देंगे जो तुम्हारे लिए गलत है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।